Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you curve tracing. So basically, what is a curve tracing? So we can say that drawing a rough sketch of the curve is known as curve tracing, or in other words we can say curve tracing or sketching are the techniques for producing a rough idea of overall shape, location, or we can say singular points of a plane curve from its given equation. So finding a rough sketch of, or we can say tracing a rough sketch of any curve from its equation is known as the curve tracing. Now in this chapter we will study some important curves. These are some important curves which we will study. So first one is the logarithmic or equiangular spiral. And this curve is basically represented by this expression, that is r is equal to a e raised power theta cot raising power alpha, and this is basically the polar curve. Similarly, the second one is the cardioid, and it is represented by r is equal to a 1 plus cos theta, and this is polar form of this curve. Third one is the asteroid, and it is represented by x raising power 2 by 3 plus y raising power 2 by 3 equal to a raising power 2 by 3. And we can represent this curve in parametric form also, and which is given by x is equal to a cos cube theta plus b sin cube theta. Fourth one is the cycloid, and it is represented by x is equal to a theta minus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta. And fifth one is the catenary, and it is given by y is equal to c cos hyperbolic x by c. So these are basically the shapes of these curves. This is the equiangular spiral, and this is the shape of a cardioid. This is the shape of asteroid. Similarly, this is the shape of cycloid, and next one catenary. So this is the shape of catenary. So basically catenary is a curve in which a uniform heavy flexible chain basically rests when it is supported by 2 points. So if we take a uniform heavy flexible chain and which rests when we will support this chain by 2 points, the shape the chain forms is known as basically the catenary. Similarly, the cycloid is a curve traced by a point in the circle which rolls without sliding along a fixed straight line. So for example, if we have point and we have to trace a curve by this point in a circle which rolls without sliding along a fixed straight line. So the shape we will get after doing this, that shape is basically known as the cycloid. So now in this chapter we have to study the working methods to find the curve tracing in different forms of curves, and basically in 3 forms. That is, first one is the Cartesian form, second one is the parametric form, third one is the polar form. Now I am going to tell you in details the working method of these, that is the curve tracing in Cartesian form, in polar, and in parametric form. So the method of tracing curve in Cartesian form, and we know that the curve is represented by y is equal to f of x. So what we have to do, we have to basically use these 7 steps for tracing a curve in a Cartesian form. So first is basically symmetry, second is origin, third is intersection with coordinate axis, fourth is region, fifth is tangent, sixth is extension of the curve to infinity, and seventh is asymptote. So basically what we have to find, we have to basically first find symmetry about x-axis, about y-axis, about origin, about the line y is equal to x and y is equal to minus x. Similarly, we have to see whether the curve lies on the origin or not. In third, we have to find the intersection of the curve with the coordinate axis. In fourth, we have to find the regions where it is maxima, where it is minima, we can say. In fifth, we have to find the tangent. Similarly, we have to find the extension of curve to infinity. And in last step, we have to find the asymptotes. We can say whether it is parallel to the axis, that is x-axis or y-axis, or we found the oblique asymptotes. So now I am going to discuss each of these 7 steps in detail.
So first one is symmetry. So we can say a curve is symmetrical about x-axis. Okay, the curve is symmetrical about x-axis. What happens if the equation, means the given equation contains even powers of y only. Okay, for example, this is the equation of a given curve. For example, it is y square is equal to 4ax. Here y, the power of y is 2 and it is even. Similarly here the power of x is 1 and that is odd. So what we have to see, we have to see the even powers of y only. So these are the examples of even powers of y. Okay, so these are some examples basically. So we can say the curve is symmetrical about x-axis if it contains even powers of y only. So from this graph we can see that if here y square is even, so this is the graph of this parabola and it is symmetrical about x-axis. So means we have to draw this graph around x-axis. Okay, so basically हमें एक चीज इसमें बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है कि हमें सिर्फ ये पता करना होता है कि सिमिट्री वो क्या वो x-axis के अराउंड है, क्या वो y-axis के अराउंड है, या ओरिजिन के अराउंड है, या अदर लाइंस के अराउंड है. सो अगर हमें ये पता करना है कि जो हमारा कर्व है वो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस के अराउंड. ओके, तो उसमें हमें सिर्फ देखना है कि क्या जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो y की पावर क्या है. अगर वो इवन आती है तो मीन्स जो हमारा कर्व है वो सिमेट्रिकल कहाँ से होगा, एक्स एक्सिस की साइड से. जैसे सिमेट्रिकल बेसिकली हो गया सेम टू सेम कॉपी, जैसे ये एक्स एक्सिस के इस क्वाड्रेंट में वैसा ही वो बिलो भी होगा. तो अगर हमारे पास क्या आ जाए, इवन पावर्स ऑफ y आ जाए उस इक्वेशन में, तो हम कहेंगे जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस. सेम केस क्या होता है, हम कहेंगे कि अ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस इफ द इक्वेशन कंटेन्स इवन पावर्स ऑफ x ओनली. सो मीन्स अब जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पे पावर्स जो x की क्या है वो इवन है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, सिमिलरली यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो कर्व होगी वो सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के अराउंड. ओके, यहाँ पे जैसे मैंने ग्राफ दिखाया, जैसा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसी ही सेम टू सेम उसकी कॉपी बनेगी सेकंड क्वाड्रेंट में. सो या हम उसको, जैसे अब मैंने यहाँ पे एक और लाइन लिखी है कि हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस के लिए अगर क्या हो, अगर हम y को किस में चेंज करें, -y में भी, मगर स्टिल जो मेन फंक्शन है वो रिमेन अनचेंज्ड हो. मींस जो मेन फंक्शन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो सेम का सेम ही रहना चाहिए. जैसे यहाँ पे देखो x है, f ऑफ x माइनस y है, तो मीन्स y को मैंने रिप्लेस किससे किया, -y से. ठीक है, सो y, मगर फिर भी हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो क्या आ रही है, जो f ऑफ x है, मींस उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होगी, मींस दिस इज बेसिकली द कार्टेशियन फॉर्म, सो f ऑफ x y इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे अगर ऐसी इक्वेशन है और अगर हम क्या करेंगे, इसमें क्या करें, y को चेंज करें किसमें, -y में, और स्टिल हमारे पास फंक्शन सेम वही रह जाए, मतलब कर्व की इक्वेशन सेम वही रह जाए, हम कहेंगे कि ऐसे केस में जो कर्व है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस. सिमिलरली अगर हम सेकंड केस में क्या करें, x को चेंज करें -x में, मींस अगर हम उसकी साइन चेंज करेंगे प्लस से नेगेटिव में, और स्टिल जो है हमारे पास मेन फंक्शन दैट इज दिस वन, ये रिमेन अनचेंज्ड रह जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो कर्व क्या है, सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस के. थर्ड, इसमें एक्चुअली ये सिमेट्री के 5 पार्ट्स होते हैं, तो हम ये सारे 5 पार्ट समझ रहे हैं. अगर हम कहेंगे कि कोई जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, मींस ओरिजिन से कैसे सिमेट्रिकल होगा, तो कहने का ये मतलब है कि अगर जो उसमें पावर्स है और x और y है वो क्या होने चाहिए, वो दोनों के दोनों इवन आने चाहिए. तो हम कहेंगे जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, x एक्सिस के भी कर्व सिमेट्रिकल है और सेम वो y एक्सिस के भी अराउंड सिमेट्रिकल है. या हम उसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि वो कर्व क्या है, वो सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन में. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताई, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जैसे यहाँ पे लिखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे ये x एक्सिस के अराउंड है, मींस ये वाला हाफ पोर्शन देखेंगे सेम टू सेम इसकी कॉपी सेकंड हाफ, मतलब इस क्वाड्रेंट्स में भी है. मींस ये अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो मींस जैसा का जैसा ये फर्स्ट और
फोर्थ में बना है, सेम कॉपी इसकी सेकंड और थर्ड में भी बनी है। और अगर हम इसको अराउंड किसके देखें, अगर हम इसको अराउंड वाई एक्सिस के अराउंड देखेंगे तो मीन जैसे कि ये फर्स्ट और सेकंड में इसका शेप बनी है, सेम टू सेम कॉपी उसकी क्या बनी है, थर्ड और फोर्थ में भी बनी है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो कर्व है वो सिमेट्रिकल होगी कहां से, अबाउट ओरिजिन। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास ये होता है कि हम कहेंगे कि कोई भी कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट किसी लाइन, जैसे इस लाइन के हो, मींस लाइन y इज इक्वल टू एक्स के लिए क्या कब हो कि अगर इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज नॉट चेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग x टू y एंड देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। सो मींस अगर हम क्या करें, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है दैट इज एफ ऑफ, ये हमारे पास मान के चलिए मेन इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, x को चेंज कर ले y में, ठीक है, और y बेसिकली हम y को चेंज करेंगे x में, दिस मींस, ठीक है। सो अगर ये करने के बाद हमारा क्या रहे कि ये जो मेन फंक्शन है वो एज इट इज ही आ जाए, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो हम क्या कहेंगे, वो जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे f ऑफ एक्स वाई, तो मींस y को मैंने चेंज किस में कर दिया, या x को किस में चेंज कर दिया, x और y को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखो x को इधर लिख लिया और y को इधर, तो मींस मतलब तो सेम है, फंक्शन तो वही रहा, इक्वेशन तो वही रही, ठीक है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि अगर लाइन जो है, जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट इस लाइन के होगा दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर हम क्या करें कि वो जो इक्वेशन है वो अनचेंज रह जाए जब हम क्या चेंज करें, x को माइनस वाई से या y को माइनस एक्स से। सो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास x था, यहाँ पे बेसिकली x को मैंने चेंज किस में कर दिया, माइनस वाई में, और सिमिलरली y को किस में चेंज कर दिया, माइनस एक्स में, मगर स्टिल हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो वही आ रहा है जो हमारे पास मेन इक्वेशन है। सो मींस यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऐसे केसेस में जो कर्व है वो क्या है, हमारे पास सिमेट्रिकल होगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो जो कर्व है वो सिमेट्रिकल किस में होगा, उसके अपोजिट क्वाड्रेंट्स में, हम इसको इस तरीके से भी इसको बता सकते हैं। सो नेक्स्ट, तो ये हमारे पास सिमेट्री के तरीके हुए हमें सिमेट्री फाइंड करने के। नेक्स्ट इज ओरिजिन, क्योंकि हमारे पास 7 स्टेप्स है, 7 में से ये दिस इज द सेकंड स्टेप। सो ओरिजिन से हम क्या कहेंगे कि इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। मीन्स अगर हम क्या करें, हमारे पास जो भी इक्वेशन दी होगी कर्व में, उसमें हम x की वैल्यू भी 0 पुट करें और y की वैल्यू भी 0 पुट करें, तब क्या हो, अगर वहां पे क्या आ जाए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मींस अगर हम यहाँ पे मान के चलो, ये एग्जांपल है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, इसको अगर मैं एक्स को भी 0 पुट करूं, वाई को भी 0 पुट करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, मेरे पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 होगा तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो मीन्स ये इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS आ गया। मीन्स ये जो ये वाला कर्व है, वी कैन से ये क्या करेगा, ये ओरिजिन से पास होगा। सो मीन्स 0 0 कहाँ पे लाइक कर रहा है, उस कर्व पे कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या, यहाँ पे x क्यूब है प्लस y क्यूब है, दिस इज इक्वल टू 3xy। सो मीन्स अगर मैं x की वैल्यू भी 0 पुट करूं, y की वैल्यू भी 0 पुट करूं इस पूरी इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, यहां से भी मेरे पास आएगा 0 इज इक्वल टू 0। सो सेम केस में क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। सो यहां से हमें पता चल जाएगा कि जो कर्व है वो क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अब देखो जैसे कि पैराबोला की इक्वेशन का मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे अगर मैं x को भी 0 पुट करती हूँ और y को भी 0 पुट करती हूँ, तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू 0। और यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन हमारा, और देखिए ये वाली ये कर्व जो हमारी क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है। सो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जो इक्वेशन ऑफ कर्व है अगर वो सेटिस्फाई करे, मींस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तब हम कहेंगे कि वो कर्व क्या करेगी, पास करेगी ओरिजिन से। अब जैसे ये एक एग्जांपल है सर्कल की। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये ओरिजिन से पास नहीं करता, क्यों, देखो यहाँ पे हम जब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो मान के चलो हम पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर बच जाता है, ठीक है, मतलब 0 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर मीन्स अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे फिर हमारे पास आ जाएगा
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और हम कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। सिमिलरली अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें 0 तो मेरे पास आ जाएगा, सॉरी वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी। ठीक है, सो यहाँ से कहने का ये मतलब है यहाँ पे हमें 0 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास ए टर्म जो प्लस माइनस है इसके रूट्स बन रहे हैं। सो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। अब यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि ये जो ये कर्व है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, उसके बाहर से पास हो रही है। सो ये एक एग्जाम्पल है किसकी, कर्व की जो ओरिजिन से ना पास करे। सो थर्ड स्टेप इज बेसिकली द इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इसमें हमें क्या करना होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन टू गेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। सिमिलरली वी हैव टू पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन टू गेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। सो मीन्स हमने क्या करना है, हमने पहले एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है और वहां से हमने क्या देखना है, इंटरसेक्शन हमें पॉइंट्स मिलेंगे इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। सिमिलरली हम वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे उस इक्वेशन में, हमें वहां से पॉइंट ऑफ intersection with x axis मिलेंगे। Fourth step is basically region. Okay, so if possible write the given equation in the form this, means ये this is the Cartesian form। हमने सबसे पहले क्या करना है, Cartesian form में उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। फिर हम क्या करेंगे, give values of x to make y imaginary, let y be imaginary for the values of x lying between x is equal to 8 and x is equal to b, then no part of the curve lies between x is equal to a and x is equal to b. So similarly we can say the curve does not lies between those values of y for which x is imaginary. सो इस रीजन में हमने बेसिकली ये करना होता है कि हम सबसे पहले इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यूज जो x है हम कुछ वैल्यूज देंगे x को कि सो दैट क्या हो जाए, हमारे पास y इमेजिनरी बन जाए। और ऐसा भी हम उसमें करेंगे कि जो वो y इमेजिनरी जब हमारे पास बन जाएगा फॉर द वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन, ये हमारे पास इंटरवल होगा दैट इज x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल to b, then no part of the curve lies between these 2 points. So means हम कहेंगे कि वो जो curve है वो उन points के पे लाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर हम क्या कहेंगे, जो कर्व है वो डज नॉट लाई करेगा उन पॉइंट्स में जहां पे क्या होगा, फॉर द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज इमेजिनरी, ये मीन्स इसका वाइसी वर्सा है। सो फिफ्थ पॉइंट में हम टेंजेंट्स फाइंड करेंगे। तो मीन्स हमने क्या करना है, और हमें पता है टेंजेंट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इक्वेट करते हैं लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के लिए। तो सेम हम यहाँ पे वही चीज करेंगे, हम जो टेंजेंट्स फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन होगी उसके जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स है उसको इक्वल टू 0 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई कर्व है, हमने क्या करना है, इसके टेंजेंट्स फाइंड करने, तो जो इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म है, अब लोएस्ट डिग्री टर्म इसकी क्या है 3axy, सो उसको हमने इक्वेट करना है 0 के। यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास x भी 0 आएगा, y भी 0 आ गया। सो ये दो हमारे पास क्या आ गए टेंजेंट्स, कहाँ पे, ओरिजिन पे। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट जो बेसिकली ये जो 5th पॉइंट का हमारे पास एक पॉइंट और होता है कि ये एक ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। बी पार्ट में कि मान के चलो कि इफ द कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मान के चलो जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, सो द टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय फाइंडिंग उसका डेरिवेटिव। मींस हमने क्या करना है, उसके टेंजेंट्स कैसे मिलेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट दैट पॉइंट, एंड दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो ये हमारे पास मेथड है टेंजेंट फाइंड करने के लिए। और हमें ये बेसिकली देखना क्या होता है कि वो टेंजेंट्स क्या है, क्या वो डबल पॉइंट आ रहे हैं, क्या वो कस्प आ रहा है, क्या वो नोड आ रहे हैं, या वो कंजुगेट पॉइंट्स आ रहे हैं। सो 6th पॉइंट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कर्व टू इन्फिनिटी। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, गिव द वैल्यूज टू x फॉर विच द वैल्यू ऑफ y इज इन्फिनिटी। हमने ऐसी वैल्यूज x की देनी होती है जहां पे क्या है, y की वैल्यूज क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। और सिमिलरली वाइसी वर्सा, दैट इज y की ऐसी वैल्यूज देनी है जिसके लिए x क्या आ जाए, इन्फिनिटी हो। सो ये जो वैल्यूज हो गई, ये बेसिकली ये हेल्प क्या कर देती है हमें, डायरेक्शन इन विच कर्व एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमें बताएगी कि वो डायरेक्शन जहां पे क्या होगा, कर्व क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। 7th पॉइंट है हमारा एजेम्पटोट। और एजेम्पटोट्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी होती है, हमें या पैरेलल एजेम्पटोट मींस पैरेलल टू x एक्सिस देखना होता है, y एक्सिस देखना होता है। सिमिलरली हमें ऑब्लिक एजेम्पटोट्स इसमें निकालने होते हैं।
और उसके मेथड हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमें ऑब्टेन करना होता है asymptote parallel to x axis for these things, what we have to do, we have to obtain by equating the coefficient of highest power of x to the 0. so means हम highest power of x को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के, वहां से हमें क्या मिलेंगे, asymptote parallel to x axis. सिमिलरली जब हम coefficient of highest power of y को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, asymptote parallel to y axis. इसी तरीके से जो लास्ट होता है दैट इज द ओब्लिक एसिम्प्टोट, कैसे फाइंड करना होता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी है एसिम्प्टोट के चैप्टर में. जस्ट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा रही हूँ. सो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें अगर हमारे पास ये एक कोई एसिम्प्टोट हमें मिल गया है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हमने उसकी वैल्यू क्या करनी होती है, उस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन होती है कर्व के, उसमें पुट करनी होती है. वहां से हम क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ हायर पावर्स ऑफ x टू 0, एंड वहां से हमें मेन चीज क्या करनी होती है, हमें m और c की वैल्यूज फाइंड करनी होती है. सो ये स्टेप्स है हमारे फॉर ट्रेसिंग ए कर्व इन ए कार्टेशियन फॉर्म. अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो नेक्स्ट वी विल सॉल्व वन एग्जांपल. सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ट्रेस द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy. सो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके सेवन स्टेप्स हमें फाइंड करने हैं. मीन्स फर्स्ट वन होती है हमारे पास सिमिट्री हमें फाइंड करनी है. सेकंड हमारे पास स्टेप जो होता है दैट इज हमें देखना है क्या ये कर्व ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा. थर्ड पॉइंट में हमें ये देखना है उसका इंटरसेक्शन देखनी है हमने किसके साथ, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ. फोर्थ स्टेप हमारा होता है बेसिकली रीजन फाइंड करना. फिफ्थ स्टेप में हमें टेंजेंट्स फाइंड करने होते हैं. और सिक्स स्टेप में हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन हमें एक्सटेंड देखना होता है, कर्व टू इन्फिनिटी में करना होता है. या मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व टू इन्फिनिटी, कर्व टू इन्फिनिटी. एंड सेवन स्टेप में हमें क्या फाइंड करने होते हैं, इसके एसिम्प्टोट्स फाइंड करने होते हैं. और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसके शेप मिल जाएगी कि कर्व की, इस कर्व की जो शेप होगी वो कैसी होगी. सो अब हम सबसे पहली चीज फाइंड करेंगे दैट इज सिमिट्री. अब ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बस इसको थोड़ा समझने की जरूरत है. सबसे पहले हमने देखनी है सिमिट्री. तो सिमिट्री के लिए हमने क्या देखना है, सबसे पहले देखो कि क्या इसके इवन पावर्स हैं. देखो यहाँ से हमें पता चलता है ना, ये ना इसकी मीन्स एक्स स्क्वायर की पावर इवन नहीं है, ना ही वाई की इवन है. तो मीन्स यहाँ से क्लियरली हो गया कि ये ना ही तो पैरेलल जो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस के है, ना ही ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस के है. और सेम यही चीज है. अब हमने क्या देखना है, इसका हमारे पास एक टर्म ये भी होता है कि हमें देखना है कि क्या ये सिमेट्रिकल अबाउट लाइन है कि नहीं है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम क्या करें, इंटरचेंज करें. सो मैं लिखती हूँ इफ वी इंटरचेंज एक्स टू वाई. अगर मैं क्या कर रही हूँ, इंटरचेंज कर रही हूँ किसको, एक्स से, कहाँ पे, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज एक्स और वाई को करूंगी. अगर जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, सो द इक्वेशन ऑफ जो कर्व है वो क्या हो, इज नॉट चेंजिंग. द इक्वेशन ऑफ कर्व इज नॉट चेंजिंग, कर्व इज नॉट चेंजिंग मीन्स कि वो चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. सो ऐसे केस में क्या होता है कि जो कर्व होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट लाइन होता है. तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. देखो कैसे कि अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन में मान के चलो x की जगह पे क्या करूं, y करूं पुट, और y की जगह पे क्या करूं, x करूं पुट. तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाए, x क्यूब की जगह पे y क्यूब हो जाए, y क्यूब की जगह पे क्या हो जाए, x क्यूब हो जाए. और जहाँ पे y है वहां पे मैंने क्या करना है, x पुट करना है, मीन्स इंटरचेंज करना है, और जहाँ x है वहां पे y करना है. सो देखो अगर मैं ये चीज कर रही हूँ तो जो मेन इक्वेशन है ये वाली, ये और ये क्या आ रही है, सेम ही आ रही है. कुछ इसमें मतलब कुछ भी इसमें चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो मेरी कर्व है वो किसके अराउंड सिमेट्रिकल है, वो हमारे सिमेट्रिकल है अलोंग दिस लाइन दैट इज y इज इक्वल टू x. सो हमें यहां से क्या मिल गया, सिमेट्री पता चल गई. ओके.
सो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड हमारे को क्या फाइंड करना होता है, ओरिजिन देखना होता है। सो मीन सिमेट्री हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हमें ओरिजिन देखना है। अब ओरिजिन में हमें करना क्या होता है, सिंपल चीजें हैं। ओरिजिन में हमें यही देखना है, अगर हम क्या करें, पुट करें एक्स को 0 और वाई को भी 0 पुट करें, तो क्या इक्वेशन ऑफ जो कर्व है वो सेटिस्फाइड होती है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे द इक्वेशन पुट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, द इक्वेशन of curve is satisfied, यहां से हमें क्लियरली समझ आ रही है। देखो मैं अगर x की जगह पे 0 पुट करूं, सिमिलरली y की जगह पे भी 0 पुट करूं, सो यहां से भी पुट करूंगी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू 0। सो यहां से मेरे को मिला क्या, बेसिकली 0 इज इक्वल टू 0। सो मीन्स यहां से कर्व की जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो मीन्स ये जो लाइन, ये जो कर्व दिया है ये ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा। सो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट फाइंड करना है। सो थर्ड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने देखना है इसका इंटरसेक्शन देखना है, किसके साथ, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो मैं लिखूंगी इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट, ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सो इसके लिए क्या करना है मुझे, अब वो देखो आप कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगी, किस तरीके से मेरे पास इसकी वैल्यूज आएंगी। सो आई विल राइट, सो इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस में मुझे करना क्या है, इसमें मैं जब एक बार x को 0 पुट करूं तो मुझे y का वैल्यू पता चलेगा वो कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली जब मैं y को 0 पुट करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये x को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो मैं लिखती हूँ पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से मेरे पास x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो कर्व है वो मीट क्या करेगी, द कर्व मीट्स x axis only at the origin। क्यों ओरिजिन पे क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आई, 0 आई। वो कितनी आई, 0 आई। मींस अगर मैं क्या करूं, y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की भी वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखा देती हूँ। जैसे देखो x की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, y की वैल्यू पुट कर रही हूँ 0, तो x क्यूब प्लस y क्यूब हो गया, तो मीन 0 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3ax, और y की जगह पे 0 पुट किया तो यहां से मेरे पास आ गया x क्यूब इज इक्वल टू बेसिकली 0। सो और आई कैन से दैट x इज इक्वल टू 0। सो मीन्स जब मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रही हूं तो मुझे x की वैल्यू भी 0 आ रही। मीन्स ये कहां पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, इस ओरिजिन पे। 0 0 क्या होता है, ओरिजिन है, इसलिए मैंने लिखा कि ये जो कर्व है वो मीट करेगी x एक्सिस को कहां पे, ओरिजिन पे। सिमिलर केस होगा अगर मैं क्या पुट करूंगी, x इज इक्वल टू 0 करूंगी पुट, इंप्लाइज मेरे पास y भी किसके वैल्यू आएगा, 0 के लिए। सो मैं क्या कहूंगी, देयरफॉर यहां पे मैं लिख देती हूं द कर्व मीट्स y एक्सिस। अब मुझे क्या देखना है, y एक्सिस के लिए भी देखना है कि क्या वो ओरिजिन पे उसको मीट करता है कि नहीं करता है। सो द कर्व मीट्स y एक्सिस ओनली एट द ओरिजिन। ओके, सो सेम चीज करेंगे यहाँ पे। अगर हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे, सॉरी x की जगह पे 0 पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास y भी 0 आएगा। सो ये हमारे पास इसका अगला पॉइंट क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमने क्या निकालनी है, अब हमने रीजन फाइंड करने। सो अब रीजन के लिए क्या करेंगे, अब देखो। सो नेक्स्ट हमारा होता है रीजन। अब रीजन को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले कर्व की इक्वेशन लिखेंगे। वो क्या थी हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। सो इसमें बेसिकली 4 केसेस आते हैं कि देखो कैसे। मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस ये है कि अगर x क्या होगा वो पॉजिटिव है। मैं क्या लेके चल रही हूं, अगर इस इक्वेशन में क्या हो, x अगर पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि y भी मेरे पास क्या होगा, वो भी ऑल्सो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके, इसी तरीके से मैं कहूंगी कि जो अगर x भी पॉजिटिव आया, y भी पॉजिटिव आया, तो यहां से हमारे पास आएगा कि जो कर्व है वो लाई कहां पे कर रहा है। मैं क्या लिखती हूं कि लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट
रेंट। ओके, सो हम ये कह रही हूँ कि अगर मैं x की वैल्यूज पॉजिटिव लिखती हूँ तो मेरे को y की भी वैल्यू क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिलेगी। मैं अगर x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव इसमें करूँ तो मेरे पास y की भी सारी वैल्यूज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी इस इक्वेशन ऑफ कर्व से। तो यहाँ से मुझे क्लियर होता है कि जो कर्व है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जरूर। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट ये हो सकता है कि मान के चलो x क्या है, वो नेगेटिव है। ओके, और अगर x नेगेटिव है तो ये भी हो सकता है कि y क्या आए, वो पॉजिटिव आए। हो सकता है ना, हमें अभी इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कोई नेगेटिव डाले तो हो सकता है y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाए, वहां से अगर इसको पुट करने के बावजूद भी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो कर्व जो होगा वो हम कहेंगे वो लाई किस में कर रहा होगा, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ से हम क्या कहेंगे, वो जो कर्व है वो लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके पास हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर हम क्या करें, x को नेगेटिव पुट करें, या हम ऐसे लिखते हैं x इज नेगेटिव, और वो क्या करे, y भी नेगेटिव आए, y की वैल्यू भी क्या आ जाए, नेगेटिव आए। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कर्व होगा या इक्वेशन ऑफ द कर्व इज नॉट सेटिस्फाइड, हम लिखेंगे देन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज नॉट सेटिस्फाइड, और वी कैन से द कर्व लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन द कर्व लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बन सकता है, डी ऑप्शन ये हो सकता है कि x क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, हाँ, और y की वैल्यू क्या आ जाए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली नेगेटिव आ जाए, इज नेगेटिव। सो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो कर्व है वो किधर लाई करेगा, कर्व लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सो ये इसके हमने एक तरीके से रीजन्स देखे हैं कि कहाँ पे जो ये कर्व है ये फॉल करेगा, किस किस क्वाड्रेंट्स में ये हमारा जो कर्व है वो फॉल करेगा। अब हमारे पास फिफ्थ क्या है टर्म, दैट इज हमें अब क्या निकालना है, अब हमें फिफ्थ पार्ट होता है हमारा टेंजेंट, और उसके बाद हमने क्या निकालना है, टेंजेंट्स के बाद हमने निकालना है बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ कर्व टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व या एक्सटेंशन लिख सकते हैं ऑफ कर्व टू इन्फिनिटी, और सेवेंथ स्टेप में हमें क्या देखने हैं, एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। सो अभी हमें ये 3 मोर स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, सो दैट हमें क्या मिलेगा, कर्व मिल जाएगा। सो हम लिखते हैं, सो अब हमें टेंजेंट्स फाइंड करना, और उसके लिए हमें क्या करना है, हमने देखना है कि वो कर्व पहले क्या है, वो ओरिजिन से पास करती है कि नहीं, और ये हमें क्लियरली पता चला था कि जो हमारा कर्व है वो ओरिजिन से पास करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि I will write here the given equation of the curve, the given equation of the curve, that is कर्व कौन सी, f of xy, which is represented by क्या दिया था वो हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे मैंने इसको लिख देती हूँ -3axy, दिस इज इक्वल टू 0, दिस पासिस, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। सो ये क्या करेगा, पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये पास कहाँ से कर रही है, थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन। सो हेंस द टेंजेंट्स आर गिवन। हम टेंजेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, हम लोवेस्ट डिग्री को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। सो हेंस द टेंजेंट्स आर गिवन बाय इक्वेटिंग, आर गिवन बाय इक्वेटिंग टू 0, बाय इक्वेटिंग, ऐसे लिख देती हूँ, इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म्स टू 0, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स टू 0। सो अब देखो इसमें सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है हमारे पास, दैट इज 3axy। सो मैं लिखूंगी 3axy, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, xy किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो वी कैन से x भी 0 है और y भी 0 है। सो ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या आ गए, टेंजेंट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गए टेंजेंट्स। सो हेयर द टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। अब ये दोनों के दोनों जो टेंजेंट्स, अब क्योंकि देखो अब हमने ये भी देखना है कि ये जो दो टेंजेंट्स आए हमारे पास, क्या ये कस्प है, क्या ये नोड है, क्या ये डबल पॉइंट है, क्या ये आइसोलेटेड पॉइंट है, या क्या कंजुगेट पॉइंट है, ये भी हमें देखना है। अब देखो x की भी वैल्यू 0 है बाई ये, तो मीन्स ये रियल भी है और डिस्टिंक्ट है। ये क्या है, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो दिस मीन्स हमें क्या मिल गया, नोड
नोड, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास टेंजेंट्स ऐसे आए जो रियल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो तो हमें नोड मिलता है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर द टू tangents are real and distinct, so it is a node. So distinct, hence we get a node, hence get a node. सो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया. अब हमने ये भी देखना है कि जो कर्व है वो क्या मीट कर रही है लाइन पे कि नहीं, जो हमने ऑलरेडी निकाला था कि y इक्वल टू x पे ये मीट कर रहा है. ठीक है, सो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, नाउ लेट अस चेक एट व्हाट पॉइंट्स, क्योंकि हमें वो पॉइंट्स भी देखने होते हैं ना. सो एट व्हाट पॉइंट्स द कर्व meets the line. हमने कहा था क्योंकि ये इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल है, तो अब हमें ये भी देखना है कि किन पॉइंट्स पे क्या करेगा, ये कर्व को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है वो कर्व की वो लिखेंगे, दैट इज x³ प्लस दूसरी क्या थी हमारे पास y³ माइनस 3axy इक्वल टू 0. अब हमने क्या करना है, जहां जहां पे x है वहां पे क्या, सॉरी जहां जहां पे y है उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, x पुट करनी है. सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे x³ प्लस, अब y की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, x, तो ये बन गया x³ माइनस 3 इंटू a इंटू x, दिस इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर आई गेट 2x³ माइनस 3ax², दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मेरे पास इसके मुझे बेसिकली क्या करना है, रूट्स निकालने हैं. तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे कि x कॉमन आ जाएगा मेरे पास, मैं लिख सकती हूँ ऐसे कि यहाँ से x² कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास ब्रैकेट में क्या बच गया, 2x माइनस 3a, दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आ गई मेरे पास, एक 0 आ गई, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक 3a/2. सो ये मेरे पास टर्म्स आ गए इसके. ठीक है, सो अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3a/2 आई तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यूज मिलेगी, वो मैं इसमें पुट करूंगी. तो मैं लिखूंगी फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट, आई गेट y इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू 3/a, क्यों y इज इक्वल टू x है. तो सेम चीजें आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे भी वैल्यूज. सो यहाँ से कर्व क्या मीट कहाँ पे कर गया, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप में. So now x is equal to 0 and x is equal to 3a/2. Similarly, y is equal to 0 and y is equal to 3a/2. So hence I can write, hence the curve meets at 0 0. एक कौन सा पॉइंट बनेगा, 0 0, और दूसरा क्या पॉइंट बन जाएगा, 3a/2 एंड 3a/2. सो ये मेरे पास पॉइंट्स हो गए कौन से, जहां पे ये क्या करेंगे, मीट करेंगे. अब हमारे पास दो पॉइंट्स बच गए. एक है हमारे पास 6 पॉइंट है, दैट इज एक्सटेंशन टू कर्व टू इन्फिनिटी, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द कर्व टू द इन्फिनिटी, ऑफ द कर्व टू द इन्फिनिटी. तो मीन्स अब हमने वो पॉइंट्स देखने जहाँ पे y इन्फिनिटी होगा और जहाँ पे x इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी. सो सिक्स्थ है हमारे पास पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ कर्व टू द इन्फिनिटी. जैसे हमने रीजन्स में पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. सिमिलरली जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव. सो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि अगर हम क्या करें, y को किसकी तरफ ले जाएं, इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रीजन से हमें वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि x की वैल्यू किधर चली जाएगी, माइनस इन्फिनिटी. सो हम कहेंगे कि जो कर्व है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सो हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्व एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इन द सेकंड क्वाड्रेंट. ऐसे केस में वो कहाँ चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है. सिमिलरली अगर हम क्या बोलें कि x की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास पॉजिटिव है, और क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पे देखना है तो हमने प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, मीन्स यही दो पॉइंट्स है. सो ऐसे केस में y की वैल्यू क्या जा सकती है, वो किस पे चली जाएगी, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी के केस में. सो सेम वहाँ पे हमारे पास जो कर्व होगा वो एक्सटेंड करेगा इन्फिनिटी को, कहाँ पे, वो एक्सटेंड करेगा इन्फिनिटी को इन फोर्थ क्वाड्रेंट में.
ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि इसका इनकी एक्सटेंशन, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट है हमारे पास टू फाइंड द एजेम्पटोट। सो अब हमें एजेम्पटोट्स के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है कि क्या वो पैरेलल टू, हमें देखना है वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या उसके बाद हम ओब्लिक निकालते हैं। अब देखो कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो एजेम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए निकालने के लिए क्या करना होता है हमें इसके जो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट्स होते हैं उसको इक्वेट करना होता है 0 के। सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होगा, इसका एक्स का हाईएस्ट कोफिशिएंट जो डिग्री का कोफिशिएंट है वो 1 है। सो मीन्स यहाँ से क्या आएगा, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, और हमें पता है कि अगर वो टर्म कांस्टेंट आती है मीन्स नो एजेम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम लिखेंगे नो एजेम्पटोट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली हमने क्या देखना है, वाई एक्सिस के अराउंड भी। सो हम वहां पे भी उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। सो पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा एजेम्पटोट का, वो अगेन जो वाई की हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कितना है 1 है। सो अगेन वो 1 आ गया, और वो क्या हमारे पास है कांस्टेंट है। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कोई भी एजेम्पटोट हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस भी नहीं मिला, ठीक है। सो अगर हमें कोई भी एजेम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं मिला, वाई एक्सिस नहीं मिला, तो इसका मतलब हमें हो सकता है हमारे पास ओब्लिक एजेम्पटोट हो। तो अब हम क्या करेंगे, उसका ओब्लिक एजेम्पटोट निकालेंगे। ओके, सो हम लिखेंगे नेक्स्ट वन इज ओब्लिक एजेम्पटोट। सो उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमें ये चीज पता है, हमें इक्वेशन में क्या पुट करना होता है। हम ऐसे लिख लेते हैं कि लेट अस कंसीडर y is equal to mx plus c be the required asymptote. Okay, now what we have to do, we have to substitute this value in the equation of the curve. So हम इसको substitute करेंगे। So अब हम substitute करेंगे इसमें the given equation of the curve, and we will solve it for the values of m and c. For the values of m and c we get, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास जो m आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। सिमिलरली जो हमारे पास c आएगा वो कितना आ जाएगा, -a आएगा। सो ये टर्म मैंने डायरेक्टली लिखा है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। ये ऑलरेडी हमने पढ़े हैं कि कैसे ओब्लिक एजेम्पटोट्स निकालने होते हैं। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एजेम्पटोट आ गया, तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड एजेम्पटोट इज, हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड एजेम्पटोट what is x plus y plus a equal to 0। सो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड एजेम्पटोट। जब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू वहाँ पे 1 पुट करेंगे, किस में, y इज इक्वल टू mx प्लस c में। सो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन है। सो इस हिसाब से अब हमारे पास जो शेप ऑफ द कर्व आएगी वो क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपको कि शेप ऑफ द कर्व इज एज follows. So this is the shape of this curve, that is the curve which one, x cube plus y cube minus 3aXy equal to 0। सो ये इस तरीके से ही आप लोगों ने क्या करना है, जब भी हमें क्वेश्चन आएगा कि हमें फाइंड करना है कर्व ट्रेसिंग किसी भी कर्व का, तो हमें यही 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। और 7 स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमारे पास ये जो फिगर आएगी वही हमारा क्या होगा, दैट विल बी द आवर रफ स्केच ऑफ द कर्व, जो भी हमारे पास गिवन होगा उस इक्वेशन का। Okay, so next we will study in next video, that is the method of curve tracing in parametric form and similarly for polar form. Thank you.